Actually, we all know programming, make a bit black hole under ice. Who is taking your DM? सबका अलग अलग ना होगा यार, टीचर्स अलग अलग होंगे सबके. Manju ma'am, Gaurav sir. The teachers are good, but मीलू आचार्य मैम किसको मिली यार? कैलकुलस की. great. Guys, turn on your videos. I want to see all of you. ऐसा अजीब अजीब फोटो अच्छा नहीं लग रहा है. भैया अभी थोड़े घर वाले ड्रेसेस में बैठे हैं. हाँ कोई हाँ, नहीं, तो छोड़ मैं मत आओ क्या? ना. अच्छा ठीक है, चलो. संतरा छील रहे भैया, बड़ा अजीब लगेगा. खाने वाला संतरा ना. अरे हाँ हाँ. अरे भाई साहब. चल ठीक है. Fine. So let's get started now. I'm from third year. थर्ड ईयर. देखो भैया थर्ड ईयर में थर्ड ईयर. ब्रांच सीएसई. आईटीआर में होके सीएसई लिए भाई. प्राइवेट में अगर कोई और, मतलब सीएसई प्रेफर किया था ज्यादा. We all are depressed person. अच्छा. डिप्रेशन चली जाएगी, कॉलेज जैसे खुल जाएगी एक हफ्ते में. कॉलेज खुल के एक भैया हफ्ते में. प्रोग्रामिंग इज डिप्रेशन भैया. दिमाग का भजिया हो जाता है. फाइन. एंजॉय करने का ब्रो उसको धीरे धीरे. एंजॉय करना है भाई, हम लोग सिखा रहे हैं. I'm saying in a sarcastic way. All right, fine. Then that's good. हाँ Please give some suggestions for college. College खुलेगी, कब खुलेगी? It's वो going सब to पता चल. reopen somewhere in maybe March, April, maybe. पता नहीं. मतलब उसके पहले भी हो सकता फेब्रुअरी है. में कोई चांसेस नहीं है. Not sure, खुल भी सकता है. कोई कंफर्म नहीं, खुल भी सकता है. वो नवीन जी के ऊपर डिपेंड करता है और कॉलेज अथॉरिटीज के ऊपर. अपने यहाँ घर में बैठ कुछ नहीं कर सकते. चलो अभी we can start the session. Yeah. स्टार्ट कर दीजिए. So yeah. Okay. So you all are just got into college and you all must be very much energetic कि कुछ करना है. Will get placed in packages like 10 lakh, 12 lakhs, 14 lakhs, 30 lakhs. Will be getting them. So what should you do, or like how should you start your first steps? क्योंकि तुम लोग ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग कुछ अभी करेंगे, मस्त पढ़ेंगे, फिर we'll get into very good package or something like that. Basically that's the main motive, right? कि हम लोग प्रोग्रामिंग करें क्यों. यहाँ पे रेयरली बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे कि वो वाला है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऐसे कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग हायर स्टडीज में चले जाएंगे, कुछ और कर लेंगे. लाइक विल नॉट गो टू द मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट? देयर इज अ वेरी few people like that. So let's start. We have a team of 6 right now. I'm there. Siddhant is there. He's a 4-star code chef, programmer. Then we have Ayush. भैया आवाज We have क्या? आवाज नहीं आ रही थी. 4-star पता है ना क्या होता है? Fine. Wait. आ रही. So we have Saurabh Vera. We have Manas. We have Rishika. We all are having a small team, but we can take volunteers from you guys also. So what we'll be doing basically is, just a minute, by the way, did our participants just go above 100? Oh, that's great. Yeah, it's 10 boy. Oh, that's amazing. वही तो. Yeah. So just like let's hacker up qualified.
Yep. Is फेसबुक, अरे फेसबुक हैकअप क्वालिफायर का मतलब क्या है? there's a competition called Hacker Cup conducted by Facebook, and she has qualified that. यानी Yeah, उसमें whatever. होता क्या है? हैकिंग होता है? नहीं ब्रो, No, हैकिंग वैकिंग नहीं it's होता। a competitive program. Just bear with us for 5 minutes. We'll tell you everything in detail, in fact. So let's get started. Like, we have a vast area of what we can do. So we have a part that's development. जिसमें हम लोग we make build applications, web development, build machine learning models, and many things like that. And we have a part that's competitive programming. So there are two different parts. We, as a part of Coursera ITI chapter, we will be making you stronger in the part of competitive programming, and that's the main thing. जो बड़े MNCs और बड़े जो पैकेजेस देने वाले जो कंपनीज होते हैं, लाइक इवन द स्टार्टअप्स, दे प्रेफर टू टेक स्टूडेंट्स जिनका प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छा होता है, राइट? बट इट्स नॉट लाइक दैट कि तुम लोग डेवलपमेंट एकदम नहीं करोगे. जो गेटिंग माई पॉइंट, राइट? कि डेवलपमेंट क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या है. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तुम लोगों को सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिया रहेगा, तुमको उसको सॉल्व करने के लिए यू विल हैव टू राइट द कोड फॉर दैट. एंड इन डेवलपमेंट यू हैव टू बिल्ड समथिंग इन रियल लाइफ जिसको लोग यूज कर पाएंगे, राइट? दैट्स लाइक उसमें लाइक बोथ ऑफ देम आर नेवर एंडिंग पाथ्स. तुम लोग पढ़ते जाओगे एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है? So we have a separate club called Codex. Many of you must be knowing that. उसमें हम लोग डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं. We help you make a lot of projects. And in this CodeChef ITR chapter, it's a chapter जिसमें like it's not a club. It's a chapter जिसमें we will be promoting and letting you develop more in competitive programming and how you will excel yourselves in that. Fine. हम लोग contest करवाएंगे. We will have some events and all. And like there are different contests and there are huge contests conducted by MNCs also. जो अभी I think Ashish Pradhan was asking, right? So there's a competition conducted by Facebook that's called Hacker Cup. Is my voice breaking? नहीं ठीक है। No, be it. No, No, it's be it. okay. It's right. It's all Good, right. it's good. Okay. It's going fine. Okay, so there's a contest called Hacker Cup conducted by Facebook, and like that's a global contest. Cracking that is very tough, and she is someone like she has cracked that too. So we have a team of extremely good coders also, and there are developers also. So that's what we are comprised of, and हम लोग तुम लोगों को इस वे में गाइड करेंगे, because many were there कि जिनको पता नहीं था, they were like in a cloud of something कि CodeChef ITI chapter है क्या, what is CodeChef, what is this is which language is best for competitive programming. See, many like I'm not telling C language, it's SEE. See, so there are languages like C++ and Java that I'll be preferring कि इनमें से तुम लोग कोई भी एक चूज कर लो. बट स्पेसिफिकली तुम लोग मेरे को पूछोगे कि कोई भी अभी लैंग्वेज स्टार्ट नहीं किया है, हम लोग अभी एकदम फ्रॉम स्क्रैच है, कोई भी लैंग्वेज हम लोग पिकअप कर सकते हैं, तो इन दैट केस कौन सा लैंग्वेज उठाए? आई विल सजेस्ट यू गो फॉर C++. ठीक है? बिकॉज C is very fast. Java has a huge library of there is a huge library, okay, but in C you don't have the libraries, and in Java, like Java is a bit slow. अब दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जिसमें तुमको लाइब्रेरीज भी मिल जाएगा, लैंग्वेज भी बहुत फास्ट है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू, तो तुम लोग C++ जाओ. बट इन द पर्सपेक्टिव अगर तुम लोग को डेवलपमेंट भी करना है उसके साथ साथ, तो आई विल सजेस्ट यू कि गो फॉर जावा, क्योंकि जावा में यू विल हैव एवरीथिंग इन अ प्लेटर. सब कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा. फाइन, कुछ नहीं किया, सिर्फ सीपी करना है. व्हाट अबाउट पाइथन? पाइथन इज ग्रेट. कॉलेज में कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा? तुम लोगों का कुछ करिकुलम चेंज हुआ है तो आई गेस करिकुलम पे या जैसे हम लोग का जावा था. करिकुलम पे दिया है स्टार्टिंग क्या में है इन जावा लोगों पढ़ाया का जाएगा पता है? फर्स्ट ईयर में. नहीं फर्स्ट ईयर पे जावा पढ़ाते हैं अपन, सेकंड या फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर पे हम लोग को पाइथन ही पढ़ाया जाता है. ऐसा करिकुलम पे दिया है, अभी तो जावा है फिलहाल तुम लोग का.
ओके, सो इट विल बी जावा राइट नाउ। उसके बाद तुम लोग का मे बी पाइथन कराएंगे, हम लोग का सी था, हम लोग का पाइथन नहीं था पूरे करिकुलम में। तो व्हाट अबाउट पाइथन, राइट? तो पाइथन इज वेरी गुड, बट इट्स कंपैरेटिवली अ स्लोअर लैंग्वेज। जब तुम एग्जीक्यूट करोगे एक प्रोग्राम जो सी में तुम्हारा मे बी 0.1 सेकेंड्स में हो जाएगा, वो पाइथन में अराउंड 0.8 सेकेंड्स ले लेगा, या फिर मे बी 1 सेकेंड 1.5 सेकेंड्स तक ले लेगा। तो दैट्स लाइक यू गेट अ माइनस पॉइंट देयर। बट पाइथन में तुम लोग अगर, पाइथन में बेसिकली बहुत सारे लाइब्रेरीज, बहुत सारे फंक्शंस है। इफ यू नो ईच एंड एवरी फंक्शन की कौन सा क्या क्या करता है, तो बहुत बड़े बड़े कोड तुम लोग पाइथन में बहुत छोटे में लिख सकते हो। बट आई प्रेफर पाइथन ओनली टू दोज जो मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं, सो दैट दे कैन शिफ्ट आउट देयर आल्सो। मशीन लर्निंग और artificial like I mean machine learning or deep learning or something like that. Fine. Now Siddhant will take over. Siddhant, just give them a brief about what we'll be doing in CodeShare ITI chapter. हेलो गाइस, तो अपन यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग सारे कॉन्टेस्ट जितने भी होते हैं वर्चुअल कॉन्टेस्ट कराते हैं, कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर कराते हैं और क्लासेस भी लेते हैं कि तुम लोग मतलब कैसे कंप्यूटर कोडिंग को अपना अच्छा कर पाओ। अपन यहाँ कोई डेव या मतलब डेवलपमेंट रिलेटेड कोई बात नहीं करते। मेरी वॉइस इज वेरी लो भैया। नो भैया सही है। ठीक है, Fine. ठीक है। No, it's fine. सही है भैया। नहीं, देखो मैं प्रेफर करूँगा जावा लो। अगर मतलब प्योरली कम्पिटिटिव कोडर बनना चाहते हो तो सी प्लस प्लस बेस्ट है, बट जावा में तुम थोड़ा डेव के साइड भी जा सकते हो, एक ही लैंग्वेज पे दोनों हो जाएंगे। और पाइथन इसलिए प्रेफर नहीं करना चाहता क्योंकि मतलब बहुत सारे कंपनीज जो कोडिंग टेस्ट रखती है उस पर पाइथन नहीं देती। ऐसा मैंने सुना है बहुत लोगों से कि मैं तो कोई बैठा नहीं कोई प्लेसमेंट पे सेकंड ईयर पे हूँ, That's true, true, true. तो बहुत सारी कंपनीज Even मैं भी कुछ एक 2-3 कॉन्टेस्ट दे रहा था, लाइक कंपनी हायरिंग में, उसमें सिर्फ जावा 1.7 और सी प्लस प्लस था, लाइक दैट। इसीलिए मैं पाइथन इसलिए बस प्रेफर नहीं करता। तो अगर डेव पे जाना Yeah, है तो do we ML AI have तो पाइथन IBM? बेस्ट है। Do we have IBM in our placement cell or something like that? मैं कभी बैठा नहीं भाई, मैं नहीं जान सकता। आई एम इन सेकंड ईयर राइट नाउ। Because they mainly ask for Python in their contest or something, interview round. नहीं वो स्पेसिफिक मतलब लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपनी से आती है तो उसके लिए तुमको ढूंढना पड़ेगा। Hello. Excuse me, people. We will clear all your doubts. First of all, listen this. We will clear all your doubt at the last. Siddhant, तू बोल. देखो व्हाट इज प्रोग्रामिंग, भैया मैं स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ। ओके, फाइन। ब्रीफ अबाउट मशीन लर्निंग। भाई मशीन लर्निंग अपन बोले ना यहाँ पे कॉम्पिटिटिव की ज़्यादा बात करेंगे, मशीन लर्निंग या डेव के साइड हो गया, उसके लिए कोडेक्स। हेलो, तो व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग मतलब हम लोग ये सी प्लस प्लस जावा ये सब प्रोग्रामिंग नहीं होता, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। मेन थिंग प्रोग्रामिंग क्या होता है कि अपन को एक कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई मतलब प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना ही प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मतलब कुछ स्पेसिफिक मतलब क्या बोले, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर से बात करे, उससे बात करके उस स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करके हमको ब्रीफ उसका आउटपुट दे, उसको अपन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और हम लोग इस पर प्रोग्रामिंग इसलिए यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग ये पढ़ाते हैं कि तुम लोग कोई भी एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो, कैसे उसको आगे बढ़ाओ। मतलब कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, मतलब कोडशिप क्या है कि कोडशिप कॉम्पिटिटिव कोडिंग की एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, तुम लोग उस पर टेस्ट देते हो। तो एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, उसके सॉल्यूशन कैसे बिल्ड करोगे, हम लोग एक चैप्टर पे यही बताते हैं। अभी फ़िलहाल तो ये चैप्टर ऑनलाइन ही चल रहा है, जब से स्टार्ट हुआ है। कॉलेज खुलने पे हम लोग वहाँ पे मतलब फिजिकल मीट भी रखेंगे जहाँ पे तुम लोग आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अभी सारे जितने भी मीट्स होते हैं सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, तो उस पर अपन सारे अभी DS को पढ़ाए थे, तो तुम लोग अभी फर्स्ट ईयर तुम लोग को फिर से वही सब कर किया जाएगा।
तुमको पहले एक लैंग्वेज तुमको खुद से सीखना होगा। एक लैंग्वेज तो पहले लैंग्वेज अपन नहीं पढ़ाएंगे, लैंग्वेज के सारे रिसोर्सेज दे देंगे, लैंग्वेज पढ़ना होगा खुद से। उसका डीएस इंपॉर्टेंट होता है, डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर, डीएस मतलब, तो वो पढ़ना उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ होता है डीएस पढ़ना कोई भी लैंग्वेज का। उसके तुम कैसे कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ये सबसे ब्रीफ मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी से तुम कोई भी मतलब अगर तुम कोई भी कंपनी में बैठते हो तो उससे पहले उसकी कोडिंग राउंड होती है। उस कोडिंग राउंड को पार करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई बड़ी टेक जाइंट में तुम अगर अप्लाई कर रहे हो तो इसी के लिए अपन यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाते हैं, और वो बस कम्पिटिटिव कोडिंग से ही आएगी। अगर तुम कॉन्टेस्ट दोगे, मतलब कॉन्टेस्ट क्या होता है कि आधे घंटे मतलब 2 घंटे का हुआ, 2.5 आवर्स और या 3 घंटे का हुआ, तो ऑनलाइन कोडिंग राउंड जो कंपनीज की होती है वो भी ऐसी ही होती है। तो उस पर तुमको मतलब एक तरह से ना तुम उसके यूज टू हो जाओगे कि हम तो कॉन्टेस्ट देते रहते हैं तो मुझे आदत है। कैसे तुम एक क्वेश्चन आ रहा है, तुम कितने जल्दी उसको अप्रोच लगा पा रहे हो अपना, तो वही हम लोग उसी चीज़ को यहाँ एनहांस करते हैं चैप्टर पे। दैट्स ऑल भैया। हेलो। Yes. So that's all. If you guys have any queries कि तुम लोग को पूछना है, you can go ahead with that. तो भैया तुम स्टार्टिंग कहाँ से करें, फिर कौन सा लैंग्वेज से सबसे बेस्ट रहेगा स्टार्टिंग करने के लिए? देखो, अगर तो तुम तुम्हें कंफर्म नहीं हो, बेस अगर तुम कहाँ कंफर्म नहीं हो मतलब जो बेस क्लियर करने के लिए? हाँ देखो वही मेरे बता को रहा भी हूँ डाउट। कि अगर तुमको कंफर्म नहीं हो कि तुमको किस साइड जाना है, कम्पिटिटिव साइड या डेव साइड। जैसे तुम अभी कुछ भी तुमको अगर नहीं पता तो तुम सोचोगे कि हम किस साइड जाएं, डेव या कम्पिटिटिव, तो तुम जावा चूज़ करो। जावा से तुम दोनों साइड जा सकते हो, और जावा तुम्हारे कॉलेज सिलेबस पे भी है तो तुमको फ़ायदा भी होगा उससे। एक लैंग्वेज लिए, अब लैंग्वेज को पढ़े कहाँ से, लैंग्वेज के रिसोर्सेज तुमको दिया जाएगा। थैंक यू भैया उसके रिसोर्सेज, लिए भी। हाँ, तो उस रिसोर्सेज को तुम फॉलो करोगे, उस रिसोर्सेज से पढ़ोगे तुम। पढ़ाएगा तुमको कोई बैठ के तो पढ़ा नहीं सकता ना। हाँ वो तो है। और कॉलेज पे भी आईसीपी पढ़ाया जा रहा है तो टीचर मतलब बेसिक आइडिया तुमको दे ही देंगे आईसीपी में भी, तो उसको फॉलो करो। व्हाट्सअप ग्रुप लिंक, भाई व्हाट्सअप पे कोई ग्रुप नहीं बनेगी क्योंकि व्हाट्सअप पे वो लिमिट पार हो जा रहा था भैया। इंटर्नशिप हम लोग टेलीग्राम पे हैं। अपन अभी टेलीग्राम पे है। इम्पीरियल मैक्स क्या पूछे थे, वी डिडंट गेट। टाइपिंग स्पीड रिक्वायरमेंट और उससे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट करना कैसे रहेंगे। इंपीरियल मैक्स भाई पता नहीं चला क्या टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज करें, किस चीज़ पे टाइपिंग करना, कोड का टाइपिंग है ऐसे नॉर्मली टेक्स्ट टाइपिंग, तो वो तो तुम प्रैक्टिस कोड का टाइपिंग, कोड का टाइपिंग। तो कोड तो मतलब अभी जैसे मान लो अगर तुम नए हो लैंग्वेज पे तो लैंग्वेज के सिंटैक्स तुमको याद नहीं होंगे, तो धीरे धीरे जब याद हो जाएगा तो अपने आप स्पीड हो जाएगा टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग स्पीड कोई कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। टाइपिंग हाँ स्पीड पे कोई डिपेंड नहीं करता। तुम क्या पूछ रहे थे, पर खुद से पूछो, मतलब कुछ और पूछ रहे थे क्या, बोलना क्या चाह रहे थे? नहीं वही समझ नहीं पूछना आया। चाह रहे थे कि टाइपिंग बहुत जगह होता है कि टाइपिंग स्पीड इतना होना चाहिए, कोई लिमिट दिया रहता है। मैं तो कभी नहीं देखा। ये क्या है हो सकता है हमको रोहन भैया सारी वो चीज का एक्चुअली ध्यान नहीं आ है। जाती है हरिजन ना, हाँ हाँ, वो आ जाती है, एक्चुअली उसमें आ कोई जाती है टेंशन नहीं। टाइपिंग। रोहन फिर हम लोग एक मीट भैया करेंगे आई ये आई हैड टेलीग्राम ग्रुप पे। आस्क्ड एनीवन ऑफ योर क्वेश्चन सर। मैंने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा था एक बार, यूजर भैया 100 to 100 वोल्ट अकाउंट। भैया मेरा एक दोस्त मीट पे अभी आना चाहता है बट एंट्री नहीं मिल रहा है उसे। नहीं 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 नहीं, वो अपन इस पे ना 100 क्रॉस कर गई थी तो हम लोग फिर से एक मीट का लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे डाले हैं। अब फिर एक मीट होगा तो जो लोग इस पे हैं वो लोग उसमें ना आए, जो लोग नए हैं वो लोग को आने के लिए जगह दें। अच्छा ठीक। मतलब बहुत लोग का उसमें अभी भी पड़ा हुआ पेंडिंग पे, तो वो लोग को नेक्स्ट मीट पे ऐड कर रहे हैं। हाँ 440 तो तक ये उस बस पे एक ज्वाइन करने बोल देना। ओके हाँ, ठीक। ये हाँ बस एक इंट्रोडक्शन सेशन था, मतलब इंडक्शन के तुमको बता दे ये कोर्स चैप्टर है क्या। ये हम लोग कुछ मतलब जितने भी कम्पिटिटिव है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, बस ये इसके लिए एक मतलब प्लेटफॉर्म है। हम लोग में चैप्टर है जो कोर्सशिप प्लेटफॉर्म के थ्रू वो स्पॉन्सर्ड है, जो बोल सकते हो तुम। कोर्सशिप हम लोग को इस पे लाया है। भैया आई हैड अ क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, इंटर्नशिप मिलता है कि नहीं, और कॉलेज में कॉलेज के बाद कितना टाइम मिलता है देख इंटर्नशिप कॉलेज के तुमको बाद खुद से। मानस बोलो।
देख इंटर्नशिप तो मिलेगा, थर्ड ईयर में आएगा, आओगे जब, तब इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, तो वही कुछ करना पड़ेगा, मतलब उसके लिए तुम लोग को सब कुछ सीखना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग सब कुछ। और क्या क्वेश्चन है? कॉलेज में पढ़ाई के बाद कितना टाइम मिलता है? ओ, कॉलेज में पढ़ाई के बाद अगर तुम घूमने नहीं जाओगे तो बहुत टाइम मिलता है। एग्जाम्पल, कॉलेज 2 बजे खत्म हो जाएगी, तो पूरा ही टाइम है 2 बजे के बाद। भैया ये जैसे आजकल हमारी क्लासेस हो रही हैं ऐसे 10 बजे, फिर 10 से 11, उसके बाद बीच में गैप, फिर उसके बाद 1 बजे से, तो क्या कॉलेज में भी ऐसा ही होगा? हाँ, सेम टाइप ऑफ क्लासेस विल बी देयर। सेम वही सेम कॉलेज में भी सेम वही टाइम सेम बस। है। 2 घंटा ब्रेक रहता है बीच में। तो भैया मैं क्या मैक्सिमम कॉलेज स्टार्ट 10 बजे से होगा फिर? अरे तुम नहीं, लोग वो अभी कितना डिपेंड बजे स्टार्ट करता है, होता है? हर सेमेस्टर में डिपेंड अभी करता 10 बजे स्टार्ट होता है भैया। और खत्म हर कब होता 10 है? और सेमेस्टर डिपेंड 11। 4 बजे खत्म 4 होता है। 4 बजे। 4 बजे खत्म होता है, 4। Everyone is speaking, it's getting echo. Just one by one you speak. अच्छा, आई गॉट इट। सब लोग म्यूट करो। तुम लोग अभी 10 बजे से 2 PM तक होता है, राइट? हमारे टाइम में होता था, इट यूज्ड टू बी फ्रॉम 8 AM टू 2 PM। It's तो 10 to इट विल 4 बी मोर और p.m. लेस लाइक दैट। तुम लोग का नो 10 to भैया, 4 होना, फ्रॉम 10 हमारा to 8 to 2 4। होना। भैया डिफरेंट डे डिफरेंट टाइम। Yeah, we have मतलब gap in between classes. हाँ, तो वैसा ही वो होगा। सेमेस्टर डिपेंड करता है भाई। क्या किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा? भैया प्लेसमेंट के लिए इस डेप्थ में क्लब में ऐड होने के लिए लिमिटेड सीट्स है या फिर कोई भी ऐड हो सकता है? हाँ अच्छा नहीं नहीं नहीं, देयर विल बी एक अ हम लोग एक मतलब स्क्रीनिंग रखेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप का। पहले तुमको एक लैंग्वेज खुद से पढ़ना है, स्पेसिफिक होकर सबको बता दे रहा हूँ। एक लैंग्वेज के लिए लिंक्स, रेफरल्स, जितने डॉक्यूमेंटेशन है सारे भेज देंगे हम लोग। अभी भी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड किए थे, बट उस पर सब लोग नहीं थे, तो अभी टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर देंगे। जितने जितने लिंक्स है, जितने डॉक्यूमेंटेशन है, या तुम यूट्यूब से लेक्चर भी ले सकते हो, जहाँ या अभी हम लोग ICP है तो उससे ही पढ़ सकते हो। कॉलेज सेमेस्टर में होगा तुम्हारा, तो तुम उसको रेफर करके एक लैंग्वेज को अच्छे से तैयार करो। फिर हम लोग कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन रहेंगे जो तुम्हारे बेसिक मैथ स्किल्स सबको चेक करेगा। वो क्वेश्चन का कॉन्टेस्ट होगा, उस कॉन्टेस्ट को जो लोग पास करेंगे वो लोग को ग्रुप पे लिया जाएगा, चैप्टर पे। ऐसे सबको ओके भीड़ बनाने के लिए नहीं रख सकते, इसीलिए ओके। जो रियली जो लोग अभी सच में इंटरेस्ट ले रहे होंगे वो लोग पढ़ेंगे, वही बात है बस। और प्लेसमेंट के लिए डेप्थ में जाएं, कम्पिटिटिव कोडिंग या नहीं। देखो अक्षय कुमार पांडा, अक्षय, ऐसा कोई बात नहीं कि डेप्थ में जाए कम्पिटिटिव या नहीं। मेन थिंग है कि कम्पिटिटिव करने से कुछ ऐसा नहीं तुम दिखा पाओगे कहीं पे। मतलब दिखा सकते हो अगर तुम 5 स्टार या 6 स्टार हो गए कोड शिफ्ट पे, या कोड फोर्सेस में कैंडिडेट मास्टर हो गए, तो दिखा सकते हो। बट इससे मेन होता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ता है। तो आजकल कोई भी टेक कंपनी आती है तो तुम्हारे मतलब तुमको एक मतलब मान लो 2 घंटे का इंटरव्यू हो रहा है, तो तुम पे वो आके तुमसे थोड़ी ना 2 घंटे में ऐप बनवाएगी कि ऐप बना के दो मेरे को। वो 2 घंटे में तुमसे डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये सबसे क्वेश्चन पूछती है तुम्हारा दिमाग चेक करने के लिए। तो वो तुम उसको स्ट्रॉन्ग करते हो कम्पिटिटिव के थ्रू, कि हमको कोई मतलब डेटा स्ट्रक्चर है तो उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो वो तुम्हारा दिमाग चेक करती है कंपनी आके, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कम्पिटिटिव यूज़ करते हैं। कम्पिटिटिव में क्वेश्चन बना रहे हैं और उससे हमको वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो इसीलिए बस कम्पिटिटिव को हम लोग इतना जोर दे रहे हैं कि कम्पिटिटिव को स्ट्रॉन्ग करो। आई थिंक अक्षय की बात हो गई। अब कोई और? भैया एक्चुअली आई हैव लर्नड जावा टिल क्लास 10 और वहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर तक सीख गया था। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? कंस्ट्रक्टर तक सीख गए तो तुम्हारा तुम तब टेस्ट के लिए डायरेक्टली अप्लाई करोगे। देखो कोई भी चीज़ सीखने से अभी तुमको नुकसान नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि अगर तुम जावा हो तो उसको और आगे पढ़ते रहो, उस पर डेप्थ नॉलेज ले लो। एक लैंग्वेज पे इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं कोई भी भैया, एक लैंग्वेज मैं पे पूछ रहा था कि मेरे को अभी इतना तो सीख लिया हूँ, इसके आगे कौन से यानी कौन क्या क्या चीज़ें सीखूं सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। उसको देखो, अगर तुमको कम्पिटिटिव के साइड आना है तो तुम क्वेश्चन करने स्टार्ट करो, DSL को पढ़ो उसके, और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो। गीक्स फॉर गीक्स है, मतलब बहुत सारे ऑनलाइन गीक्स फॉर वेबसाइट्स गीक्स हैं। पे जाना, उसमें से क्वेश्चन का ना डिफिकल्टी लेवल का कैटेगरी होता है। एकदम 0 लेवल मतलब 0 मार्क्स वाला होता है बेसिक, उसके 1-2 क्वेश्चन करो, तुमको कंस्ट्रक्टर तक आता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व देम वेरी इजीली। तो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता लग जाएगा कि यू आर एबल टू सॉल्व देम। तो उसके बाद एक पॉइंट 1 लेवल होता है इजी, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के, एरेज हो गया, स्टैक्स हो गया, क्यूज हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया,
तो वो सब खुद से करते जाओ। मान लो तुमको ट्री नहीं आता, ठीक है ना, पर ट्री के भी देयर विल बी क्वेश्चंस ऑफ वन लेवल। तो जैसे तुम करने जाओगे फर्स्ट टाइम भटक जाओगे, देन देयर विल बी आर्टिकल कि फिर वहां से तुम पढ़ के सीख लोगे ट्री, ठीक है। उसके बाद से फिर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस बन जाएंगे, फिर वापस तुम अटक जाओगे, फिर यू विल रीड समथिंग मोर अबाउट दैट, उसके बाद वापस नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस बन जाएंगे। समझ लो, यू विल हैव टू लाइक इंप्रूव योरसेल्फ दैट वे, just like we are doing in JEE. Right. हैकर रैंक इज गुड। Just like you're doing- हाँ, अगर तुमको JEE तुम sir. अगर बेसिक स्टार्ट JEE में जैसा हम लोग कर रहे थे। हाँ 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 भाई, जेई के लिए कोचिंग होती थी ना, यहाँ पे कोचिंग नहीं है बस। रोहन हरिचंद्र, हैकर रैंक इज गुड। हाँ भाई, हैकर रैंक बहुत अच्छा है। अगर तुम बेसिक मतलब एकदम स्टार्ट पे हो तो बहुत अच्छा हैकर रैंक, बहुत ज़्यादा अच्छा मैं कहना चाहता हूँ। और इनफैक्ट कोई भी कंपनी आती है तो वो कोडशेफ या कोडफोर्सेस पे नहीं लेती, वो हैकर रैंक या हैकर अर्थ पे ही लेती है अपनी कॉन्टेस्ट, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट। और हैकर रैंक या हैकर अर्थ जो है, ये दोनों से वो लोग मतलब तुमको डायरेक्टली रिक्रूट भी करती है तुम्हारे प्रोफाइल देख के। तो हैकर रैंक इज़ वेरी गुड। और क्वेश्चंस इजी होते हैं पहले तो उसके, बट इजी मतलब इजी क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इजी नहीं होते, इजी क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं उसमें, बल्क होती है इजी क्वेश्चन की, तो तुम उसको कर सकते हो। और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का, हाँ आप कोडशिफ्ट में आपने बताया कोडशिफ्ट में आप 4 स्टार कोडर हो, मींस आप कॉम्पिटिटिव कोड ही सीखते हो और सीख भी चुके हो शायद काफ़ी कुछ। तो आपने कैसे स्टार्ट किया, कौन से लैंग्वेज से स्टार्ट किया आपने, कहाँ से सीखा? क्या आपने ये आईसीपी जो सिखाते रहते हैं, आईसीपी जो सिखाते हैं आप बस उसी से सीखते रहे कि आपने कहीं बाहर से कुछ सीखा? नहीं भाई देख, मेरे 11-12 जावा नहीं था, मैं फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड से था, तो मेरा नहीं था जावा। तो कॉलेज पे जो पढ़ा है उसको पढ़ा, और ये लॉकडाउन में ही पढ़ा हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको पढ़ा हुआ, लेकिन कंटिन्यूस मेहनत करना पड़ता है। कंटिन्यूसली तुम उसको पढ़ोगे तो ही होगा। कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ डाउट आ रहा है वहाँ फिर से गूगल कर रहे हैं, तो ऐसा है। और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कैसा करना चाहिए नहीं, आदित्य नारायण भाई, ओपन सोर्स बहुत अच्छा होता है, बट ये कम्युनिटी जो बना रहा है या कोर्स चैप्टर जो है, ये ओपन सोर्स के ऊपर कुछ बात नहीं करती, ये कंपेरेटिव के ऊपर से बात करती है। ओपन सोर्स या कुछ भी डेवलपमेंट के लिए कोडेक्स है हमारा, जो बहुत ही रेनाउंड क्लब है हमारे कॉलेज का, वो अभिनव भैया उसी के हैं, उसके कोऑर्डिनेटर हैं। और किसी कोई डाउट? भैया वो प्लेसमेंट्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है? बहुत ज़्यादा, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और थर्ड ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में वही पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को। ओके, मैंने बोला या ना, और मतलब कौन कोई कौन से कंपनी आती, क्या हुआ अभिषेक? और कौन कौन से टॉपिक होते हैं अभी ऐसे, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स के अलावा? डेटा स्ट्रक्चर्स अल्गोरिथम्स ये मेन है, उस मतलब ये बेसिकली टॉप प्रायोरिटी पे है। फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डीबीएमएस। सिस्टम डिजाइन चौथा, ये भी कहा। हाँ, सिस्टम डिजाइन भी तुम्हारा, उसके बाद सिस्टम डिजाइन, और फिर तुम्हारा आएगा वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी। हाँ, तो ये सब है, ये सब कोर सब्जेक्ट्स हो गए जो तुमको पढ़ने होंगे, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट। मेन चीज़ है डीएसए क्योंकि ना तुम मतलब कोर सब्जेक्ट तुम केमिस्ट्री पढ़ाओगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टाइप है, कि उसको तुमको पढ़ते रहना होगा, याद करके रखना होगा। और डीएसए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स है, मतलब उसको तुम सॉल्व करते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, कॉपी पेन लेके, तब होगा। Guys, we'll be wrapping up in next 2 to 3 minutes, okay? तो किसी कुछ डाउट है Because तो there's है कोडेक्स में एंट्री हो रही थी, अभी एक टेस्ट होने वाला है कुछ दिनों में, तो you'll have to appear for that if you want to get into codex. कोडेक्स का टेलीग्राम ग्रुप है, हाँ है, बट उस पर ऐसे ज्वाइन नहीं होता, उस पर तुमको टेस्ट दोगे तभी ज्वाइन होगा। There will be a test and you'll have to solve few questions, एक कुछ minor assignment दिया हो जाएगा, फिर you'll be able to join that. भैया ये कोडेक्स और कोड शिफ्ट चैप्टर 1 आईटीआर, इसमें इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? जैसे मैं इनिशियली बताया था कि there's development and there's competitive programming, right? तो कोडेक्स जो क्लब है, that had been founded around 3 to 4 years ago, even more than that. तो वहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट्स, ओपन सोर्स एंड अ लॉट मोर अबाउट दैट वो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। वी एज अ टीम डेवलप अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, इवन वी हैव अटेंडेंस ऐप जो हमारे कॉलेज में सब लोग यूज करते हैं, दैट्स आल्सो बीइंग बिल्ड बाय कोडेक्स, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो कोडेक्स
में भी तुम एंटर कर सकते हो। एंड CodeChef IT chapter has been founded just around 3 to 4 months ago, or we are doing this. कोडिंग भैया नहीं भाई, उसके बारे में तो कुछ पता नहीं अभी तक, वो कब खुला है, क्या हुआ है। भैया आई हैव टू आस्क समथिंग। हम्म। भैया जैसे आपने टेस्ट के बारे में बताया, तो सर भैया ये टेस्ट जो होंगे तो ये कंबाइन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस होंगे या किसी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज पे होगा? नहीं कंबाइन ऑफ ऑल तुम लोग लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज दे सकते हो, कोई भी लैंग्वेज से दे सकते हो, कोई भी। तो द बिगिनिंग प्रोग्रामिंग्स होंगे, मतलब जैसे स्टार्ट जीरो लेवल के प्रोग्रामिंग्स जो। एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन। ओके भैया वो प्लेसमेंट में भैया वो प्लेसमेंट में डेवलपमेंट ज़्यादा जरूरी होता है या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? देखो प्लेसमेंट में ऑन द स्पॉट तुमको तो डेवलपमेंट में ज्यादा नहीं पूछेंगे, मेनली वहां पे तुमको पूछेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, आई मीन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। पर तुम्हारे पास खुद से कुछ प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए जिस पे तुम पहले से काम करके रखो या फिर बिल्ड किए हो, उसके बारे में वहां पे तुमको पूछेंगे ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो वो बनाने के लिए तुमको डेवलपमेंट नॉलेज भी होना चाहिए। डिड यू गेट व्हाट आई से? या कुछ ऐसा पूछो। हाँ, टेस्ट के लिए बता दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में ही, सब कोई उस पे अप्लाई कर सकता है। भैया ये जो व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप में जो लिंक भेजे तो वो स्टडी मटेरियल्स का इसमें मिलेगा क्या टेलीग्राम में? हाँ सब मिलेगा, सब मिलेगा। टेलीग्राम पे भी डाल दिया जाएगा, वो लिंक को फिर से डाल देंगे, ये मीट खत्म होने के बाद उसको डाल देंगे। थैंक यू भैया। भैया अभी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। बेसिक प्रोग्रामिंग, तुम एक लैंग्वेज को थोड़ा बेसिक तरीके से जान लो कि तुम फॉर लूप सब कैसा चलता है, एक लूप कैसे वर्क कर रहा है, फॉर लूप सब, व्हाइल लूप, फिर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक। तुमको कोई पूरा ऊप्स का कॉन्सेप्ट जानना, ये सब जानना जरूरी नहीं है कि कितने क्लास रन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल नहीं, बट वो सब बाद में तो पढ़ना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना वो सब चीज़ को। अभी ना वी कैन वाइंड अप नाउ। अभी पे खत्म करते हैं नेक्स्ट। So thank you. We'll take your doubts again, and we'll if you have any doubts, you can ask in the Telegram group, and we all are always there for you. Thank you भैया। Thank you. Thank you भैया। थैंक यू भैया। Thank you भैया। Thank you भैया। Thank you. Thank you। Welcome.